السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سورہ منافقون کی 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 5، 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں تمہارے حق میں، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو وہ نفی میں اپنے سر پھیر لیتے ہیں، یعنی انکار میں اپنے سروں کو یا اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے حق میں برابر ہے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ بھی کریں. لن یغفر اللہ لهم، لیکن اللہ بھی ہرگز نہیں بخشنے والا ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وہ وہی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں دشمنی کے ذریعے سے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے. اللہ العالمین نے یہاں پر منافقوں کے تعلق سے مزید یہاں پر ذکر فرمایا. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول منافقین کے جسمانی ساخت اور زبانی لہجے گفتگو سے آپ یعنی متاثر نہ ہوئیں، بلکہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ساری چیزیں کے یہاں یہ سارے خوبیاں اور عزت سے ہوں گی، لیکن دراصل ان کا ایمان اندر سے کمزور ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جسمانی اعتبار سے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کا معاملہ الگ ہے. یہ اہل ایمان سے مختلف ہیں کیونکہ ان کے دل میں دراصل ایمان پیوست نہیں ہے. ظاہری طور پر مسلمان کو ہیں لیکن باطنی طور پر اسلام کی کوئی ان کے پاس حقیقت یا ان کے دل میں کوئی تڑپ بھی نہیں ہے. لہذا ہر وہ بات جو کوئی بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو وہ فوراً میں سمجھ رہے کہ یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے، ڈرنے لگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آیت ہمارے خلاف میں نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں نازل، تو اطمینان ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اپنی روش پر چلنے لگتے ہیں. اور صلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر بیان فرمایا، کہا کہ مختلف موقعوں مناسبتوں سے منافقین کے بہت سارے حالات ان کے واقعات اتنے ہیں کہ ایسی حرکتیں ان کے موجود ہیں قرآن سنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. یعنی اللہ کے رسول کے خلاف ایسی حرکتیں، باتیں، پلاننگ اور ان کی سازشیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر یہ لوگ بخشش چاہیں تو بھی ان کے اللہ بخشش سے ناراض نہیں ہے، یا اللہ کے رسول آپ بھی اگر ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو ان کی بخشش ہونے والی نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ غلطی ہوگی تم سے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، مل کر کے کہو کہ اللہ کے رسول سے غلطی ہو گئی تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ بھی معاف کریں، اللہ سے ہماری بخشش، ہمارے حق میں بخشش کی دعا کر دیں. وہ لوگ کہتے تھے ہاں ہم چلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अपने गुनाहों की बख्शिश को इस्तफार कर देंगे, छोड़ो। अपने चेहरों को फेर लेते थे, तकब्बुर से मुंह मोड़ लेते थे। जानने की तो बात दूर की बात है, बल्कि ये कहा करते थे कि देख लेंगे जैसे होगा जो होगा। इसलिए बहुत सारे मौके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से आए, मुनाफिकीन के जानिब से ऐसी सी हरकतें हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, समझा भी, नजरअंदाज कर दिया, कहा कि ऐसे ही हैं। तो वही उन्हीं बातों को यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने उन्हीं बातों पर इशारा करते हुए यहाँ पर जब मुसलमान यानी सहाबा किराम ने कहा करते थे कि अल्लाह के बख्शिश मंगवा लो, कहते नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, तकब्बुर से मुंह मोड़ लेते थे। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया, अल्लाह के आप उनके हक में इस्तिग़फ़ार करें, यानी इनके हक में बख्शिश की दुआ करें या ना करें, दोनों बराबर। करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ना करेंगे तो कोई उनके हक में कोई होने वाला नहीं। क्यों? अल्लाह ताला इनके हक में फैसला लिख दिया है, अल्लाह इनकी बख्शिश हरगिज़ नहीं करने वाला है। अब इनके दिलों को मोहर भी लग गई, वो हिदायत पाने वाले नहीं है, ना इनकी बख्शिश होने वाली है। तो अल्लाह आमीन ने फिर ये लोग क्या करते थे, जब कभी मुसलमानों के साथ ऐसे हालात पेश आते हैं तंगी के, परेशानी के, तो जो कमजोर यानी जो नए इस्लाम में दाखिल हुए होते मुसलमान साहबा उनके पास आते, देखो क्या वजह है, अगर नबी सच्चे हैं, हक हैं, और वो लोग जो ईमान लाने वाले सच्चे हैं, अल्लाह ताला ने क्यों तकलीफ दिया, उन्हें ये क्यों परेशानी लायक हुई? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि इन्हें हमेशा कामयाब होना चाहिए, फतह पाना चाहिए, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। लिहाजा ये लोग ये यानी गुमराही के रास्ते पर हैं, तो वो लोग इंतजार करते ऐसी बातें कह करके नए नए इस्लाम लाने वाले सहाबा किराम को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आमीन उनकी इन सारी बातों का यानी जवाब दिया। कई किस्स पे आया हुए कई वाक़यात हैं जो नबी शासन के जमाने में पेश आए। वही बात एक वाक़या की है इस सिलसिले में कि वो कहा करते थे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बनी मुस्तलख के दिन में बयान किया एक वाक़या मनक़ूल सीरत की किताबों में भी, सही रिवायत में भी, कि बनी मुस्तलख के दिन में बयान किया कि रसूल के वसल्लम वहां मुक़ीम थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के मुलाजिम जहजा बिन सईद गफ़ारी और सिनान बिन वबर का पानी पर झगड़ा हो गया, पानी के मामले में झगड़ा हो गया। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन यहया ने बिन हिब्बान ने बयान किया कि दोनों ने पानी के बारे में आपस में झगड़ा किया, तो सिनान ने कहा, ऐ अंसार की गिरोह, यानी मदीना वालों को उन्होंने पुकारा, और जहजा ने कहा कि ऐ गिरोह मुहाजिरीन, उन्होंने मदीना मक्का से हिजरत करके आने वाले सहाबा किराम को पुकारा क्योंकि वो भी मुहाजिर। तो दोनों अपने अपने तरफ के लोगों को पुकार करके कहा कि ऐ गिरोह मुहाजिरीन, इस वक्त ज़ैद बिन अर्क़म और अंसार के कुछ लोग अब्दुल्ला बिन उबई के पास थे। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का जो सरदार था उसके पास थे। तो उसने जब उस आवाज को सुना तो कहने लगा कि उन्होंने हमारे इलाके ही में हमें शर में मुब्तला कर दिया है। कितनी भद्दी बात है। कहा कि ये लोग मुसलमान हैं, कुछ हिजरत करके आए और कुछ यहीं के रहने वाले हैं। अब उनमें हमने जो लड़ाइयां लड़ाने इन लोगों ने शुरू कर दिया है, शर फैलाना कर दिया पानी के मसले को लेकर के, मसले को लेकर के, यानी सहाबा किराम के बारे में उसने बदगुमानी और बदजुबानी करने की कोशिश की। वल्लाह हमारी और इन कुरैशियों की मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि अपने कुत्ते को मोटा करोगे तो तुम्हें खा जाएगा। कैसी मिसाल दिया ये मुनाफिक जो है। कहा कि जो हिजरत के जो महाजिर जो आए, महाजिर साहबा, आज हम उन्हें मदीना में जगह दिए, तो आज जो है मदीना के सहाबा किराम या मदीना के रहने वालों के ऊपर जो चढ़ने लगे, ये वो कहना चाहा। तो उसकी मिसाल क्या दी? कहा कि कहने वाले ने कहा कि अपने कुत्ते को मोटा करोगे तो तुम्हें खा जाएगा। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर हम मदीना लौटे तो ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा दिल्लत वाले को उससे निकाल देगा। फिर वो अपने पास अपनी कौम के बैठे हुए लोगों से कहने लगा, अपने पास कौम के बैठे लोगों से कहने लगा कि तुमने क्या क्या है, तुमने अपने इलाके में उन्हें जगह दी और अपने अमवाल उनमें तकसीम कर दिए, अल्लाह की कसम, अगर तुम उनके साथ तावन से रुक जाओ तो तुम्हारे इलाके को छोड़कर कहीं कहीं और चले जाएंगे। कैसे बहका रहा, कैसे भड़का रहा है वो जो अभी नए नए मुसलमान जो साहबा थे, जो इसके पास बैठे हुए थे। ऐसी खबर जब उसके पास पहुंची तो उन्हें मौका पाकर के जो सहाबा किराम बैठे उन्हें भड़काने लगा। कहा कि आप ही करें मदीना में नहीं जगह दी, अपने मालों में से नहीं हिस्सा दे करके रखे हो, आप अगर अभी अपना फंड रोक लो
ان मुहाजिर साहबा अल्लाह के रसूल के मामले में कि लोग मदीना छोड़ करके निकल जाएंगे, क्यों? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इससे मजबूर होकर के निकल जाएंगे, ऐसी बातें कहने लगा। चुनांचे फिर कहा कि ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो वहीं बैठे हुए करीब थे उसकी इस बात सुन ली, तो उन्होंने नबी के शासन के पास जाकर के आपको भी बात बता दी। अल्लाह के रसूल, ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है ऐसी ऐसी बातें ये जिक्र कर रहा था, आपके बारे साहबा किराम के बारे में बातें बता रहा था। ज़ैद बिन अरक़म से छोटे से लड़के थे, आपके पास तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे हुए थे नबी शासन के पास। जब आपने जाकर के शिकायत की, आपने उन्हें भी ये बात बताई, तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप अब्बाद बिन बिशर को हुक्म दें कि उसकी गर्दन उड़ा दें, उस खबीस की गर्दन उड़ा दें। वो कैसे उसकी जुर्रत हुई नबी शासन के बारे में और नबी के सहाबा के बारे में ऐसी बदजुबानी की उसने। नबी के शासन ने फरमाया फकैफ या उमर इदा तहद्दथ अन्नास अन्न मुहम्मदन युक़तल व असहाबहु, उमर ये काम कैसे किया जा सकता है? तब तो लोग ये बातें बनाएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही साथियों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई के साथ इब्तिदाई इस्लाम लाने वाले सहाबा किराम भी तो थे। तो अगर हम उनके साथ उसके साथियों को कत्ल करेंगे तो क्या कहेंगे? या अब्दुल्ला बिन उबई भी ज़बाही मुसलमान होने का दावा करता था, बातों में पक्का मुनाफिक था, मुनाफिकों सरदार कहा जाता था, तो कहेंगे जाहिर तौर पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों का कत्ल करना शुरू कर दिया है। उमर ये तो नहीं हो सकता, अलबत्ता अब लोगों में कूच करने के लिए ऐलान कर दो। अब्दुल्ला बिन उबई को जब मालूम है कि नबी शासन को भी खबर पहुंच गई तो उसने आपके पास आकर माजरत करना शुरू कर दी। अल्लाह की कसम खा करके कहा कि उसने ये नहीं कहा जो ज़ैद बिन अरक़म ने आपको आकर के बताया। जब उसको पता लग गया दौड़े दौड़े आया और आकर के नबी शासन के सामने झूठी बात कहना शुरू कर दिया कि मैंने कहा ही नहीं, अब ज़ैद बिन अरक़म बच्चा है, वो मेरे ताल्लुक से झूठी बात आकर के बता दिया आपको, मैं नहीं कहा जो वो बोल कह रहा है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उबई अपने कौम में साहिब इज्जत आदमी था, इसमें लोगों ने उसके लायक सुन हो सकता है कि इस लड़के को बात समझने में गलती हो गई होगी और बात अच्छी तरह नहीं समझ सका और जो उसने आकर के बहरहाल ये बातें थी। और ऐसे कई और वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों से उससे साजिद और लोगों से साजिद हुए। मुफस्सिरीन ने उन सारे वाक़यात को जमा किया है, तो लिहाजा मैंने एक वाक़े को जिक्र किया था कि बात समझने। तो बहुत सारे सहाबा किराम ने उससे कहा कि देखो जाओ नबी शासन के पास जाओ, जाके माफी मांग लो, माफी मांग लो, बजाय इसके कि तुम किसी किस्म की कोई बात कहो, तो इससे अच्छा है कि माफी मांग लो, बख्शिश कर देंगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन उसने तकब्बुर किया और बहुत सारे मामलात में उसने जो है वो गर्दानी की। इसीलिए अल्लाह ने कहा चाहे अल्लाह के साथ उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ करें आप या ना करें, अल्लाह उनकी बख्शिश करने वाला नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह तंफ़द्दू, ये वो लोग हैं जो कहा करते थे तुम्हारे गैबाने में, यानी मुसलमानों के गैबाने में या आपके अलावा, ये वो लोग हैं जो दूसरों को भड़का करते थे कह करके कि तुम उन पर खर्च ना करो जो रसूलुल्लाह के पास है, जो रसूलुल्लाह के पास है उन पर खर्च मत करो, ये छोड़ करके चले गए देखना मदीना, यहां तक कि मुंतशिर हो जाए, यानी मुराद है कि मदीना छोड़ करके निकल जाए, एक दूसरे से कट जाए। वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़, इन मुनाफिकों से कहो जमीन और आसमान के खजाने अल्लाह ही के, अल्लाह ही के लिए। अगर दुनिया की मदीना के बाशिंदे इनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ने, लेन देन का मामला खत्म कर दें तो क्या बात है, वो अल्लाह जो अर्श का मालिक है, जो खजानों का मालिक है, क्या वो उसके यहाँ किसी किस्म की कोई कमी है? जिसने बनी इसराइल को आसमान से मन्नत सल्वा उतार करके खाना दिया, उन्हें मन्नत सल्वा उतार करके खाना दिया, क्या अल्लाह के पास तो ताकत नहीं है कि दोबारा मन्नत सल्वा जिसी को चाहिए आसमान से उतार के खाना दे? किस भरम में ये लोग कि क्या अगर दुनिया वाले इनसे खाना रोक लें तो जमीन आसमान का मालिक या उनसे खाना रोक देगा? नहीं। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, बात दरअसल ये है मुनाफिकीन ये अल्लाह की वहदानियत को, उसकी कुदरत को, उसकी क़ुव्वत को नहीं समझ पाते, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हकीकत को समझ पाते, जिसकी वजह से गुमराह होंगे, अल्लाह की दिलों पर मोहर लगा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल से अमल पैरा होने वाला बनाए और अपने ईमान के मामले में साबिक़ कदमी हमें अल्लाह ताला फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।